કોણ સૌથી પહેલા તમારા મગજમાં આવ્યું કે કોને કાસ્ટ કરવો છે, કેવી રીતે બધા એક સાથે આવ્યા અને પછી શૂટિંગની શરૂઆત થઈ? ઓબ્વિયસલી જ્યારે કાસ્ટિંગની વાત હતી ત્યારે પહેલા સિદ્ધાર્થભાઈની જ વાર્તા સંભળાઈ એન્ડ લાઈક જ્યારે રાઇટર્સની સાથે અમે બેઠા ને જ્યારે મેં ડિસ્કશન કર્યું ઇન 5 મિનિટ્સ હી સેઝ ધીસ ઇઝ ધમાલ, મતલબ આપણે કરીએ, ચાલુ કર બસ, હવે વધારે વેઇટ નહીં કરીશ. એન્ડ એવરીથિંગ દેન વેન્ટ ઓર્ગેનિકલી, મતલબ બધાના કોઈ પણ એમ સેકન્ડ ઓફ થોટ હતા જ નહીં કે આમની જગ્યાએ બીજા કોઈને લઈએ, એવું નહીં, નથી. વી આર લાઈક ઓન સેમ પેજ ફ્રોમ લાઈક ડે વન. And I think we have a fabulous cast. Like everyone is looking so good, and I'm so happy. It's like an family now. Thanks for including me also. Really, sir. પણ સિદ્ધાર્થભાઈ પાછું ઘોડીઓ ચડવું તું, ઘોડી ચડવી હતી એટલે શું કસર પૂરી રહી ગઈ હતી વખતેના લગ્નમાં કે આપણે પાછું? This is something वो आदमी को कभी मना ही नहीं करेगा ना इसके लिए. हाँ, जितनी भी बार हो, and he learns every time newer things. That's all. સોનલ, તમારા વખતે જ્યારે તમે આવ્યા આ પિક્ચરમાં તો કયા કયા તમને જે ફ્લર્ટેશિયસ અંદાજ તમે ગઈમાં તમને લાગ્યું યાર મારા વખતે પણ આવું થયું તો મજા આવી ગઈ? મને આવી રીતના કોઈ કહ્યું હોત ઇમ્પ્રેસ તો મને મજા આવી ગઈ હોત. ના, મને આવી રીતના જ ઇમ્પ્રેસ કર્યો. ઓહો, તો તમારી જ રિયલ સ્ટોરી છે આ. Exactly. So I didn't have to rehearse. It came out very naturally. And of course, working with Siddharth sir was an absolute pleasure. જ્યારે પહેલા મનન સરે કીધું કે આવી રીતના આ કાસ્ટ છે, and it was like બસ it's a dream cast to be with and work with. It was lovely to see him perform, observe and learn so much from him in the process. So eternally grateful. Thank you. પૂજા, તમારા માટે શું હાઇલાઇટ હતો કે તમે કીધું કે આ મારે કરવી જ છે પિક્ચર, આ હું છોડી જ નથી શકતી? When I read the script first, the script was very good. It was very catchy. એટલે સૌથી પહેલા તો script and secondly the cast. Of course, to work with Siddharth sir is a dream come true. મારા ઘરે બધા જ સિદ્ધાર્થ સરના બહુ મોટા ફેન્સ છે, and I personally have been following his theatre plays and everything. So I really wanted to work with him and I got the opportunity. And of course, Panorama Studios was associated with it, so that was also a very big thing. The whole team came together and that was the main decision for me to take up. जो आपने फैन की बात की, आई थिंक सिद्धार्थ सर आप वो आलू हैं जो सब घर पे पसंद आते हैं. इसीलिए तो डायलॉग डाला है ना वो आलू वाला. मुझे ऐसा लगता नहीं कि सब कोई चीज में बढ़ जाते हैं. गुजराती कोई भी घर में सिद्धार्थ सर को कोई पसंद ना करता हो, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं. मेरे घर के अलावा. परीक्षित, आपके लिए व्हाट वाज द रीजन आप बोले हाँ चलो ये मूवी करनी है मेरे को? रोमांटिक एंगल था, गाने वाने हैं थोड़े रोमांटिक? जैसे कि सबने बोला, बहुत आपको कॉपी पेस्ट आंसर मिलेगा क्योंकि वो रियलिटी भी है कि यार अगर आपके पास पहले इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आए, सिद्धार्थ सर पैनोरमा, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिले और ये ऐसा रोल है जिसमें मुझे सब कुछ करने को मिला है. पापा के साथ की जो केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया है, जो लव इंटरेस्ट है उसके साथ जो केमिस्ट्री है वो भी इतनी मस्त है, एंड द डायरेक्टर एंड द प्रोडक्शन हाउस एंड सिद्धार्थ सर, एवरीथिंग वाज जस्ट अमेजिंग. तो ऐसा तो कोई मना कर ही नहीं सकता, ऐसा हॉट डॉग था जिसको कोई मना कर ही नहीं सकता. सिद्धार्थ सर, व्हेन यू आर अराउंड, आप जब रहते हैं सेट पे, कितना लोगों के लिए मुश्किल होता होगा सीरियस रहने को? कुछ आई एम श्योर एक दो सीरियस वाले सीन भी होंगे. सीरियस वाले सीन है of course, but we go according to the mood of the scene and well I try and make it as comfortable which helps, you know, and it shows on the screen as well. तो जिसके साथ जैसी भी केमिस्ट्री करनी है, but we were very comfortable from day one, that's for sure. और सोनाली जी के साथ भी मेरे इंटीमेट तो नहीं पर कुछ हाथ विथ पकड़ा है मैंने, एंड शी डिडंट माइंड दैट. तो नहीं, मजा आया, बट द होल थिंग इज अबाउट दैट. एनी मूवी फॉर दैट मैटर, द टीम वर्क मैटर्स. और आई वुड स्पेशली वांट टू मेंशन इज दैट कि प्रोड्यूसर का रोल वैसे दिखता नहीं है पर बहुत बड़ा होता है. यू नो, टू गिव अ फ्री हैंड एंड हैव फेथ इन द टीम हु इज एग्जीक्यूटिंग द मूवी फॉर हिम. कुमार जी तो वहाँ शूट पर भी नहीं आए थे, सिर्फ मुहूर्त के लिए जो पहला दिन था तब आए. उसके बाद में 30 दिन जब हमने शूट किया, बट सो हैविंग दैट फेथ एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर दैट. सो बोथ आई होप आप भी खुश हो. और खुश हूँ. थैंक यू वेरी मच. कम टाइम में फिल्म बन गई और रिलीज भी हो रही है. नॉर्मली फिल्म बन जाती है, लोग एक साल वेट करते रहते हैं, लेकिन पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिन रात काम करके फिल्म रेडी की है और 30 अगस्त को पिक्चर ली. सर, आपने जो 2-3 मिनट डिस्कशन किया और अब जो ये 2.5 मिनट का ट्रेलर देख रहे हैं आप,
ये 3 मिनट्स टू 2.5 मिनट ये आप जो सोच के दिमाग में रखा था कि कैसे पिक्चर बनने वाली वैसी कुछ बनी है आपके हिसाब से? बिल्कुल जैसी सोची थी वैसे, उससे बेटर बनी है। उससे बेटर बनी। लवली। 30th अगस्त को रिलीज हो रही है ये वर्ल्ड वाइड। बिफोर वी थ्रो टू प्रेस टू आस्क क्वेश्चन, थोड़े डायरेक्टर साहब को ऐसा असमंजस वाली सिचुएशन में डाल दूंगा। बोलिए। किसके साथ सबसे बेस्ट सीन्स हुए? मतलब इसको किसी एक एक्टर को ऐसा होगा ना कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, आप कैमरा छोड़ देते जो करना है करो। जूनियर्स। सो ये माहौल नहीं ये 4 में से नाम लेना ये माहौल होता है जी। सिद्धार्थ सर सेट पे होते हैं ना, यही माहौल होता है। इतनी हंसी, इससे भी ज्यादा हंसी होती है और actually सबके साथ मजा आया। नहीं ऐसा नहीं, ये एबीसीडी में से एक ही ऑप्शन करना है। नो 50-50, नो जनता पोल। नहीं, ये मेरा ABCD 1 2 3 4 सब है ये। फिर भी एक वैसे एबीसीडी इन्होंने ही एडिट की है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ सर को ऑप्शन में वही दे रहा हूँ। ये मेरी बद्री की भी दुल्हनिया है, मेरे हमटी की भी दुल्हनिया है, सब लोग यही है, ये फैमिली है। जेन्युइनली सबके साथ इतना मजा आया जी। और मतलब एक्चुअली इट्स लाइक अ फैमिली। अभी हर चीज उनको होता कि नहीं आप बताओ क्या करना है। एंड इक्वली इम्पोर्टेंट इज कि एक्टर्स को कैसे लगा डायरेक्टर के साथ। हाँ, वो भी वो उतना important है, इम्पोर्टेंस है। वो सबको- एंड आई मस्ट से आई एडमिट इट पब्लिकली दैट वेरी 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 सॉर्टेड एंड चिल्ड आउट डायरेक्टर। बहुत मजा आया हमें। बहुत सारे टेंशन चलते ही रहते हैं, कोई भी शूट हो कितना भी चाहे प्लान कर लो, कुछ ना कुछ पीछे होते ही रहता है, बट विच नेवर शोड ऑन हिज फेस और while he said to eat, it never showed the tension. Yeah, so you can But see everything went on very smoothly, and that's credit goes to the director as well, and the DOP also. Yeah. I must mention the DOP, Vicky is here. Yes, Vicky, great job by you as well. Thank you so much. बिफोर अगेन लास्ट क्वेश्चन, कौन, क्योंकि इसमें एक सीन है जहाँ पर बोल रहे हैं कि सेल्फी के लिए लोगों को भी भाड़े पे ले आना है, कौन सबसे ज्यादा फोन पे रहता था? मोदू। मतलब एक जन तो ऐसा होगा ना कि एक सेकंड एक फोन मैसेज करके कुछ थैंक यू। फिल्म होती है उससे ज्यादा थिएटर मैक्सिमम थिएटर में रिलीज करते हैं। 23 तारीख की डेट है। और Hi, Center here, Mayur here from Beyond Bollywood. If you all can see my hand. सबसे पहले तो I think आप सबको congratulations और एज अ मुंबई का born and brought up in मुंबई, गुजराती कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है और आई थिंक बीइंग अ जर्नलिस्ट आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू वॉच सम रियली गुड फिल्म्स स्पेशली इन फेस्टिवल्स। और शायद पिछले 7 साल में शायद 2-3 गुजराती फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स मिला है। आई थिंक हिलारो है और ऑस्कर के लिए भी जैसे लास्ट ईयर छेलो शो गई थी और देयर वाज आल्सो द गुड रोड जो शायद 2013 में इट वाज इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन। सिद्धार्थ जी, ऑब्वियसली यू आर अ वेटरन ऑफ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री या थिएटर इंडस्ट्री। खैर सबसे पहले तो मुझे आपसे जानना था कि हॉट डॉग के अंदर तीखा सेव डालने के बाद उसका स्वाद कैसे रहता है? बढ़िया होगा तभी डालते होंगे ना। आप आई अवॉइड, मैं तो नहीं खाया हूँ, बट जैसे बोला गया वैसे मिलता भी है ये। दिस इज Oh, अच्छा। अवेलेबल, या यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। ओके ओके, ये सिर्फ हॉट डॉग नहीं है, कोक में भी सिंग डालते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ राजकोट। कोको कोला में सिंग डाल के पीते हैं लोग। ओके, ये मुझे भी कभी ट्राई करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली ऑन अ सीरियस लेवल, यू नो, जो मैंने जैसे गुजराती फिल्मों का जिक्र किया और शायद पिछले 1-2 साल पहले एक अच्छी फिल्म मैंने देखी थी 21 टिफिन मोर टिफिन। यस। तो जब मैं इन फिल्मों को देखता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे एक एजुकेशन मिलती है उस प्रांत के बारे में और कहीं ना कहीं लगता है कि आई थिंक शायद ये फिल्में इसलिए चलती है हार्डली विदाउट मच मार्केटिंग, बट ये अपने कल्चर से रूटेड होती है। और क्या अगर आप मुझे ओवरऑल अगर आप आपके एक्सपीरियंस में क्या गुजराती सिनेमा हमेशा ऐसा ही रहा है, इस पे कुछ कह सकते हैं? नहीं, इनफैक्ट देयर वाज एन ईरा बिफोर 12 years और सो, जो आप बोलते हो कि गुजरात की धरती से जुड़ी हुई कहानियां या कल्चर से जुड़ी हुई, तब एक पूरा दौर था जब वैसी फिल्में काफी ज्यादा बनती थी। बट सिंस लास्ट 12 years देयर हैज बीन अ बिग शिफ्ट। वी आर टचिंग मोर अर्बन सब्जेक्ट्स, diverse subjects you will find in Gujarati. Or one more information which I can give is, since we are talking about Gujarati film, there was a film called Wash जो गुजराती में बनी, and Kumar ji has just returned 2-3 days back finishing Wash in Hindi.
दे हैव शॉट इट इन लंदन में शूट किया 1 महीने का और थोड़ा ज़्यादा उससे, और अजय जी इज प्लेइंग द लीड along with Madhavan. Okay. And the heroine from the Gujarati film is continued in Hindi as well. So इस तरह से जानकी बूढ़ी वाला. तो कुमार जी is now full throttle into गुजराती तो हिंदी, तो मैं भी लाइन में खड़ा हूँ सर, हिंदी का कुछ होगा बोल देना. ऑलवेज आप रेडी हो जाइए, टाइम निकालिए, आपके पास वक्त नहीं है. Pooja, obviously you're youth, and how do you look at the current Gujarati cinema? I feel the kind of content that is coming up these days, the kind of films that are being made, I definitely feel that the Gujarati industry is going to go up. There's so much of new people from Hindi industry also coming into Gujarati, and I just hope that the kind of films that are being made, उससे गुजराती इंडस्ट्री अपनी ऊपर ही जाए. एक आखिरी सवाल सिद्धार्थ जी, ऐसा माना जाता है कि गुजराती कम्युनिटी के पास बहुत पैसा है. क्या ये पैसा गुजराती इंडस्ट्री में भी भर भर के लग रहा है या अभी भी? हमने भी ऐसे सुना है गुजराती होते हुए. ये बात वहां तक भी पहुंचाएंगे प्रोड्यूसर तक. So what were you exactly wanting to know? In terms of scale. Scale, I'll tell you what. Still, I would say it's in infancy. मतलब शुरुआत है अभी भी. The way it should grow, it will take time, but we are on path to that. अभी भी फिल्में जो बनती है उसका एक बजट कंस्ट्रेंट है और पब्लिसिटी का भी एक कंस्ट्रेंट होता है. हालांकि गुजरात एज अ स्टेट इज अ एफ्लुएंट स्टेट. तादाद बहुत बड़ी है, मोर देन 6 करोड़ पीपल, और ओवरसीज में बहुत ह्यूज है. बट आई फील कुमार जी वो मार्केट जितनी चाहिए उतनी हम लोग टैप नहीं कर पा सके हैं, तो उसके लिए आपको तो कुछ करना चाहिए. फर्स्ट इनिशिएटिव शुड बी फ्रॉम यू. या वी आर इस फिल्म से शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि ओवरसीज में मैक्सिमम लोगों तक ये पिक्चर पहुंचे. That's very important because that changes the entire game in terms of numbers as well. क्योंकि जिस तरह पंजाबी is all set now, that has reached to a point, so that's why you have bigger budget films happening in Punjabi. So अगर ऐसा गुजराती में हो तो बहुत बड़ा डायस्पोरा है गुजराती का, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK. So these are big markets, East Africa. तो अगर वो हम लोग टैप करें तो काफी बहुत फायदा होगा. ये मीडियम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. इफ हमारे डायस्पोरा में जितने गुजराती भाई बहन लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थिएटर में जाके पिक्चर देखिए प्लीज. सही है. अगर आप थिएटर में जाके पिक्चर देखोगे तो हमको थिएटर में लगाने में और मजा आएगा. सही है. आई हैव विटनेस सो मेनी पीपल दैट दे आर सेइंग दैट हम मतलब वहाँ पे तो हमारे यहाँ पे OTT वहाँ तक पहुँचती भी नहीं होगी गुजराती सिनेमा की, तो वो सब पायरेसी से देखते हैं. बट अगर थिएटर में जाना शुरू करें, आप देखिएगा हम किस तरह से उनको वेलकम करते हैं थिएटर में, और थिएटर में पिक्चर लगाते हैं. No, that is very very relevant point जो मैं हमेशा कहते आया हूँ, and it's taken me more than 6 years. I repeat the same thing कि लोगों का जितना भी प्रतिशत जैसे हम कहते हैं, the response should still grow much more. अगर हम लोग यहीं से प्रोड्यूसर कमाता है, then you'll try and make a bigger film, and that's how you progress and you get bigger and bigger films happening in your own language. So again I request the audience to do not wait for OTT release and come and watch it in theaters because we make it for theaters. या सर आपने खड़े हो जाओ, दिख नहीं रहे आप. पीछे कैमरा है. सर आपने गुजराती मूवी में डेब्यू किया गुज्जू भाई दी ग्रेट से, और गुज्जू भाई आपका फेमस कैरेक्टर है जो आपने प्ले से ही बड़ी स्क्रीन पे लाया, एंड अभी आप बैक टू बैक बच्चू भाई एंड देन बूशर्ट टी शर्ट आप देते आ रहे हो, एंड गुजराती हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी अभी आपकी है. तो हम फैंस ये चाहते हैं कि गुज्जू भाई 3 कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, और जिस बंदे ने ये फिल्में बनाई गुज्जू भाई एंड बुशर्ट टी शर्ट, he happens to be my son Ishan Randeria, and the credit of my entering films also goes to him, that he initiated the idea कि गुज्जू भाई से हम लोग फिल्म बनाते हैं, and that's how I don't know how many years back, 8, 9 years.
9 years back we did the film called Gujju Bhai the Great, and it was received very well. And answer to your question should come from him. Gujju Bhai 3 के बारे में पूछ रहे जो मैं भी पूछता हूँ. A lot of people ask this, or we are very keen because people really love the earlier two films as well. So we are hoping next year we do Gujju Bhai 3. Thank you.